right? So let's begin our class. Yes, ma'am, the screen is visible. This is our fourth lecture and the topic is economic system, right? What do you mean by economic system? This topic you have already studied somewhere in economics, right? In economics, you already study this topic. Economic system. Economic system refers to the structure and mechanism through which a society organizes its production, distribution, and consumption of goods and services. It means, for example, let's take example of India, right? India is a country, right? Ye country hai, this is one country. In this boundary, in geographical boundary, whatever you are producing, whatever you are distributing and consuming, this all runs the economic system, right? Economic system, whatever goods or services you are giving, whatever services you are rendering, this all are the part of economic system. Economic system means how your economy is running. What is the structure of your economy? The whole world, every country runs on the basis of the production, distribution, consumption of goods and services. It means that whatever you are producing, whatever you are distributing, whatever you are consuming, it's all related to money. You are doing all these transactions in, right? You are doing economic transactions. Please teach in Hindi and English for better understanding. I request you all कि जिनको हिंदी में प्रॉपर चाहिए उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी ध्यान देना चाहिए एंड द वंस who totally want a class in English उनको थोड़ा बहुत हिंदी में भी समझना चाहिए क्योंकि क्लास में there are some students who only understand English, there are some students who only understand Hindi, and there are some which are comfortable in both languages, right? तो I'll try, मैं कोशिश करूंगी कि आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में समझाऊं, right? ओके तो अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है क्या यू वांट कि इसमें इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए या हिंदी में नहीं समझ आया या इंग्लिश में नहीं हिंदी में चाहिए एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल, तो प्लीज पेन इन द चैट बॉक्स. पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली मैं आपको उसी टाइम पे इस क्वेरी को क्लियर कर दूंगी. स्टिल अगर कोई स्टूडेंट की क्वेरी रह जाती है क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एवरी क्वेरी का आंसर दें, राइट? तो अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है, इफ एनी वंस क्वेरी इज रिमेनिंग, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर्स इन योर डाउट क्लियरिंग सेशन. ठीक है, फिर उसको हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछेंगे. सो इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन से मिलकर बनता है. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, कुछ प्रोड्यूस करोगे तो उसी को बेचोगे, लाइक डिस्ट्रीब्यूट करोगे. आप जो कंज्यूम करोगे तो उसको परचेज करोगे, राइट? सो दिस थ्री थिंग्स मेक्स द होल इकोनॉमिक सिस्टम. आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, रिसोर्सेस आर स्केयर्स. सबसे मेजर प्रॉब्लम इकोनॉमिक में आती है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड टू अस बट आवर वांट्स, आवर नीड्स आर अनलिमिटेड. सो we have to arrange our resources, we have to utilize our resources in a better way so that wastage should be minimized, right? हम वेस्टेज रिसोर्सेज की कम करें और कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम एफर्ट्स डाल के आउटपुट्स लेकर आए. तो व्हाट मेक्स द इकोनॉमिक सिस्टम? सो मेजरली थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स आर प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. Some countries run their economic system based on capitalism. Some countries run their economy system based on socialism, and some run the mixed economy.
But major factors that affects the whole economy is land, labor, capital, and entrepreneurship. You have a land in your country where, for example, you have a manufacturing एक जमीन पर आपने या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट की है. In some land you have opened the school, on some land you have opened the colleges, hospitals, right? So you need majorly land first. Second, labor, जो उसको right workers, employees जिनकी जरूरत है. Capital means money. बिना पैसों के आप कोई भी production, distribution, consumption, nothing is possible without money, right? You need capital. And entrepreneurship means एक business को run करना, right? एक business समझ लो, business idea. There's a difference between entrepreneurship and business, but यहाँ पे इतना relate कर लो कि एक business को run करना, right? Is it clear to everyone? Yes, this class is for MBA only. इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग क्लियर हुआ. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है जहां पे एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है. अ प्रॉपर स्ट्रक्चर मैकेनिज्म इज यूज्ड वेयर यू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन. आप वही प्रोड्यूस करोगे जिसकी डिमांड होगी, राइट? You will produce only those items that have a demand in the market, and you will distribute that produced goods for consumptions to the consumers, whether in the form of goods or services. I am teaching you. This is a kind of services. You are consuming the information. You are getting the knowledge. I am sharing my knowledge, right? So this is what a consumption. Are you getting my point? In all those, I am earning, you are paying to the university. I am earning from the university. This is how this economic system grows, how money circulate in the market, right? So this is what is economic system. I hope this is clear to everyone. आप सबको समझ में आया होगा ये meaning of economic system. Next, so let's start. We have a 3 economic system which are prevailing. First is capitalism, second is socialism, third is mixed economy. In today's class, we are going to study in depth, right? इसको डिटेल में पढ़ेंगे काफी आज की क्लास में हम. First is capitalism. In the last class, I already told you that capitalism is related to private ownership. Capitalism is an economic system in which the means of production, that is land, labor, capital, and entrepreneurships, are privately owned, right? Are privately owned. And production, distributions, and prices are determined by the competition in a free market. What do you mean by this? कि जो capitalism है, यहाँ पे जो mean of production, यानी कि production के कौन से factors है? Land, labor, capital, and entrepreneurships. They are privately owned. For example, you have your own business, right? So your own business, you have your own land. That land is of yours. That employees are working only for you. Capital, you have investors, and entrepreneurship. That business idea, whatever you are running. So this is all is a privately owned. It is not for social welfare, society के लिए नहीं है, ये private है, आपका अपना है. आप जब चाहो इसको sell करो, whatever you want to do in your business, you can do in a legal way, right? So this is what is private, privately owned, right? For example, if you want to go to Ramada, आप रमाडा में जाते हो और वहां सडनली जाकर स्टाफ्स को कुछ मतलब स्टाफ को कुछ नहीं, आप वहां जाकर सिर्फ बैठ जाते हो, ठीक है? यू आर नॉट ऑर्डरिंग एनीथिंग और आप जाके बस बैठे हो और एंजॉय कर रहे हो, फोटोज क्लिक करा रहे हो. तो आपको लगता है, डू यू रियली थिंक दे विल अलाउ यू फॉर दिस? नो. You have to take permission of that ambience if you want to do a photo shoot there, right? So if you want to go to the park, for example, you are going to a park and you are doing a photo shoot there, right?
So there you don't need to take any authorization, any license, any permission from anyone. It is for everyone. That is what owned by government. And this is what it is owned by private. Right? Is it clear to everyone? ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको? कैपिटलिज्म मीन्स जब आप अपने बिजनेस को, अपने वर्क को, अपने प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, अपने इकोनॉमिक सिस्टम में, आपकी कंट्री में कैपिटलिज्म है. दिस मीन्स दैट एवरीवन इज ओइंग देयर ओन. Everyone is the owner of it. Is a privately owned organized economic system. Examples भी पढ़ेंगे हम. Don't worry. Have patience. We will clear each and every doubt related to this topic. Okay. It is characterized by minimal government interventions, with the role of government largely being to enforce laws, protect property rights, and ensures a functioning legal framework that supports free enterprise. इट इज करेक्ट कि कैपिटलिज्म मीन्स कि आप प्राइवेटली ओन कर रहे हैं उस बिजनेस को, उस प्रोडक्शन को, सर्विसेज को, बट गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन इज देयर. मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, लाइक enforces law, right? Legal framework you have to follow. That doesn't mean that you are not going to pay any taxes, you will do a scam. No, just to maintain a good competition, healthy competition in the market, to make a decoracy in the market, we have the government play a minimum interventions. But you run your business by your own. If you want to close that business, you can definitely close. You want to reopen that business, you can reopen that business. You want to do 3 types of business, you can do that. But you have to function a legal framework. You have to follow the government rules and regulations. You should not do any illegal work in your country that will harm you, society, or any human being. Right? Is it clear to everyone? Yes, ideal country है. We will study in this class only. ठीक है? पहले मीनिंग समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स समझो, फिर एग्जांपल्स भी बताएंगे हम. प्रॉपर एक स्लाइड है जिसमें एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे हम. Have patience in the class, right? So first characteristics is private ownership. You have a individual ownerships, control the major factors of the production, such as factories, equipment, resources. You have to decide by your own. You have a freedom to do any type of business. You want to do business on 1 acre land or 2 acre land or less than 2 acre land. How you will occupy the equipments, how you are utilizing the resources, whatever decisions you want to take in your business, you can take. You want to lease that business, you want to lease your business, or you want to just acquire any other business, you want to sell your property, whatever you want to do, but you have to be in the bounds of the law. You don't have to misuse the law, right? Second, profit model. The ultimate source of any businessman is to earn a profit. And when we are talking about capitalism, जब हम capitalism की बात कर रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि आप you work in that way. आप इस तरीके से काम करते हैं कि आप maximum profits को उन activities से generate कर सकें. वहीं पे you must ensure that competitions जो है market में, वो should competitions को भी face करना, challenges को भी face करना है, right? So you have to do a well organized way. एक अच्छे तरीके से, एक organized way में आप क्या करोगे, आप अपने business को carry करोगे ताकि आप you can attract more consumers and earn more revenue or more profits, right? Is it clear to everyone? Third is market economy. Market economy. In capitalism, price of goods and services are determined by supply and demand in a free market. जो goods के prices हैं, वो depend करते हैं कि कितने price market में क्या चल रहा है. जो price है, वो determine होते हैं market में. अभी एक बहुत major topic है economics का. यहाँ पे हम अगर चले गए तो पूरा 1 घंटा सिर्फ इस टॉपिक में निकल जाएगा. यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने, एक सिर्फ बेसिक आइडिया लेना. यू हैव टू जस्ट टेक अ बेसिक आइडिया कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म इकोनॉमी,
then whatever price of goods and services are determined by the supply and demand in a free market, where buyers and sellers interact. Okay, prices are not set by government prices को set नहीं करता है. Prices set होती है कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है, वो जहां पे इंटरेक्ट करते हैं वो एक पॉइंट आपका आइडल पॉइंट होता है प्राइस, जिसपे आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो. दिस इज अ पॉइंट वेयर demand and supply interact. At this point you will prevail this price, at this particular price you prevail in the market, right? Is it clear? Second, when demand of product increases, price rises, encouraging the producers to increase supply. When product increases demand, if people are demanding more goods, then you will just increase your price and you start increase your supply. When you supply more, then you will able to fulfill the demand of your product in the market, right? जब आप सप्लाई ज्यादा करोगे तभी तो आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट के डिमांड को फुलफिल कर पाओगे. Is it clear? Competition is very important. You have to face a competition, and for capitalism एक competition होना is very important. Why? अगर competition market में generate रहेगा तो it will give you will do lots of innovations, you will improve your product's quality, efficiency, and that attract more customers towards your products, right? So it is very important in capitalism. Competition is very important. अगर competition नहीं है market में so you will just go on and you will not change anything, right? You will. Next, minimal गवर्नमेंट इंटरवेंशंस. अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में जब हम कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस होता है बट एक बहुत ही स्मॉल स्केल में होता है, just to ensure that everything is going smoothly, every businessman is following the rules and regulations in a legal work, so that a decorum, a good country should prevail, a healthy competition should be there, like ensures the rules and laws are followed. In short, just ensures that rules are followed. Is it clear to everyone? सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता सकते हो टॉपिक क्लियर हो रहा है. अगर आप इफ यू वांट आई शुड एक्सप्लेन वंस अगेन, प्लीज लेट मी नो. कहीं भी लगता है कि मैं किसी टॉपिक को दोबारा समझाऊं तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. जस्ट मेक अ क्लास इंटरेक्टिव. मैम यू आर नॉट टेकिंग इन हिंदी लैंग्वेज, यू आर नॉट टॉकिंग इन हिंदी लैंग्वेज. व्हाट डू यू वांट दैट आई शुड टॉक ओनली इन हिंदी? देखो, there are different students in the class, मुझे सबको ही समझाना है. I want to make that फाइन. मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम, ठीक है. स्टिल अगर कोई बच्चा है क्लास में जो चाहता है कि आई शुड यूज ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी, देखो ओनली तो पॉसिबल नहीं होगा बट आई कैन मेक अ रेशियो 50-50 फॉर एवरीवन, राइट? नेक्स्ट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी. Consumer sovereignty. Consumers play a vital role in capitalism because they determine what products are produced through their purchasing decisions. Obvious सी बात है, आज के टाइम पे in today's era, consumer is the king in the market. जो consumer है वो राजा है मार्केट का. You will purchase those products only, produce those products only what consumer is demanding. आप वही प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओगे जिसकी जरूरत है कंज्यूमर को, जिसकी डिमांड है, जो वो चाहता है. अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, राइट? सो आप कैसे डिसाइड कर दो? हाउ आर यू डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस? बाय नोटिसिंग, बाय कंज्यूमर्स परचेजिंग डिसीजन, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. You will study the consumer preferences. You note that you just collect the information from the market. You do a research work to know what consumer is demanding. In capitalism, consumer plays a very important role because you are just producing those goods. आप वही goods बना रहे हो जो consumer को चाहिए. Otherwise आपका business flop हो जाएगा. You will just
out of the market, right? Next is capital accumulation. Capital accumulation means we invest profits to expand and grow, acquiring more capital such as machinery, technology, or the resources to increase productivity and profitability. The cycle of reinvestment and growth allows business to scale up operations, driving economic development and progress. What they are explaining, कैपिटलिज्म में आप अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम पोर्शंस रीइन्वेस्ट करें. Reinvest means कि for example you have earned 100% profit, so you should at least reinvest 70 to 80% profit in your business only. Reinvest that. आप रीइन्वेस्ट करोगे बिजनेस में तो आपका बिजनेस एक्सपैंड कर पाओगे, यू कैन ग्रो मोर. आप ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज को अपने पास लेकर आ सकते हो, अच्छी मशीनरीज को, अपडेटेड मशीनरीज, अपडेटेड रिसोर्सेज, दैट गिव्स यू अ गुड प्रोडक्टिविटी, दैट इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड अल्टीमेटली यू विल अर्न मोर प्रॉफिट, और लास्ट में आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे. तो कैपिटल को, पैसे को, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट, किस तरीके से आप अपने बिजनेस की डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. तो कैपिटल को किस तरीके से यूज कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? Is it clear to everyone? Advantages of capitalism. फायदे क्या है? What are the advantages of capitalism? Consumer sovereignty. Consumer sovereignty means that consumer is the king in the market. मतलब है जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको अपने कंज्यूमर को ध्यान में रख के करना है. यू हैव टू फोकस ऑन द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस. आपको कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देखते हुए, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए ही अपने बिजनेस को रन करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने रिसोर्सेस को उसी हिसाब से यूज करना है. बिकॉज कंज्यूमर इज योर अल्टीमेटली गोल. आप कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मार्केट में गुड्स नहीं लेकर आओगे तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट एंड कंज्यूमर विल स्विच टू अनदर ब्रांड, है ना? इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो स्विच कर जाएगा. इफ यू वांट कि आपके पास ज्यादा कंज्यूमर आए, आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रिटेन कर पाओ, तो यू हैव टू प्ले अ गुड रोल इन अट्रैक्टिंग मोर कंज्यूमर्स. इज इट क्लियर राइट नाउ? अब समझ में आया आपको, या मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करूं? बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने नोकिया का. नोकिया ने टाइम की अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लेके आए, मॉडिफिकेशन नहीं लेकर आ पाए, वो आज मार्केट से बाहर है. ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है? नोकिया इज वेरी गुड एग्जांपल, इसको याद कर सकते हो आप. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, गुड. पता चल रहा है कि मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है. चलो, advantages of capitalism. What are the advantages? Economic efficiency. In capitalism, the free market allocates resources efficiently based on supply and demand. Business compete, produce goods and services as efficiently as possible to maximize profit, which leads to lower prices and better products for consumers. देखो, what do you mean by economic efficiency? जब when you are utilizing your resources efficiently, right? आप जब आपके पास जो resources हैं, you are using those resources in a very very good way, in a better allocation, you are organizing that resources in a good way. आप अपने resources को बहुत अच्छे से use कर रहे हो, wastage कम से कम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो cost of production है वो कम हो जाएगा. You reduce your prices and that will help to gain more profit, और जो products consumer को मिलेंगे वो भी काफी good quality में मिलेंगे, right? तो economic efficiency मिलती है आपको. Second, innovation and entrepreneurship. When you are running your business in a privately owned business, जब आप एक private owned business को run करते हो, तो you have lots of ideas you are coming, क्योंकि you are continuously engaged in improving your business, grow to expand your business, to grow your business, right? आप अपने entrepreneurship को, अपने business को हमेशा नंबर 1 पे लाना चाहते हो, तो आप उस पे बहुत सारे टाइम टू टाइम चेंजेस लेकर आते हो.
नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, न्यू मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, नई सर्विसेज दे रहे हो, आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हो कंज्यूमर को. दिस ऑल मेक्स यू more innovative and this innovation gives more confidence to work good. आपको वो इनोवेशन से एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है काम करने का, और उस गुड वर्क से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पा रहे हो और वो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे. राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब आप बताओ ना कि मैम यू कैन प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, राइट टॉपिक, मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि विच टॉपिक आई शुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश और हिंदी? ओके बेटा, थोड़ा सा, क्योंकि मोर देन 300 स्टूडेंट्स आर इन क्लास एंड इन स्टूडेंट्स को अराउंड 300 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. सबकी अगर मैं चार्ट पढ़ने बैठूंगी तो आई कांट एक्सप्लेन ना. सो प्लीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट आपको भी करना पड़ेगा. Innovation and entrepreneurship, I hope so she's or he's writing, and means that जब आप capitally, if you are running your business in a capital market like capitalism economy, you are owning your private business. For that you have to be more innovative, more creativity, because you have to survive in the market. You have to be very alert. You have to be alert in your market, right? So that you can get a. I want to explain you that in innovation and entrepreneurship, if you are working in a private owned sector, right? If you're working on a private owned sector, and you have to be more innovative and creativity, because there are lots of competition already in the market, lots of substitutes are available in the market. If you are not that much innovative, you are not upgrading your products, then you will lose the market. You will be out of the market. For that, you have to be more innovative and creativity should be there, so that you have the hold on the customer, consumer, and earn lots of profits. Now is it clear? I hope so. I can't ignore my students. Every student is important for me, right? Consumer choice. Now, capitalism offers consumer a wide range of choices. As business compete to meet their demands, this leads to more diverse products and services, better customization for consumers. Simply, you see a Maggie, है ना? Everyone eats, right? सबको पसंद होती है मैगी. अगर आप आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करो, 15 साल पहले की बात करो, तो मैगी में सिर्फ वन फ्लेवर आता था, राइट? आप एग्जांपल ले लो कोलगेट का. आज से 10 साल 15 साल पहले कोई फ्लेवर जैसी बात नहीं होती थी. एक कोलगेट का पेस्ट आता है, दैट यू गो एंड परचेज. नाउ टू कैप्चर, टू गिव यू मोर चॉइसेस, so that you will not substitute to other product. आप किसी और प्रोडक्ट की तरफ ना चले जाओ. आपको अपने ही प्रोडक्ट में इतनी डाइवर्सिफिकेशंस दे दी गई हैं. You have lots of choices that you will never shift to other brand. This is what is consumer choice. They are giving you lots of choices to meet your demand. अब समझ में आ गया? I think this example helps you a lot. ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल था, कभी नहीं भूलोगे. मैगी का ले लो, आप किसी टूथपेस्ट का ले लो, आप किसी सोप बार का ले लो, एनीथिंग. बार वो वाला बार नहीं, बार वो जो ट्यूब, वो साबुन लगाने वाला बार, उसको भी बार बोलते हैं ना. Next, economic growth. It helps you to promote long-term economic growth, because whatever is producing in the market, आप जो भी market में अपनी country में produce कर रहे हो, every individual, every businessman is just doing the business to earn a profit. So profit is generating in one nation. So obviously country is also growing. अगर इंडिया में unemployment zero हो जाए, everyone is earning, right? So your growth will be high. आज यूएसए एक सक्सेसफुल कंट्री है, क्यों? क्योंकि वहां पे everyone is employed. So आपकी कंट्री में अगर कैपिटलिज्म रन हो रहा है,
everyone is earning for profit, they are earning good amount, so you will always, your your business is expanding, that means your country is expanding, क्योंकि country मिलके बनी है लोगों से. जैसे simple सा example लो, these small for example they all are people, right? ये सब लोग हैं, ये सब लोग 100% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपने 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 सेक्टर्स में, अपने अपने ठीक है, जो इंडिविजुअली हर कोई कर रहा है. और ये एक कंट्री है, ये सब इस कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो अगर मैं पूछूं कि कंट्री क्या अर्न कर रही है, यस, इसकी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड. व्हाई दे आर ग्रोइंग? बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज ग्रोइंग. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है? एग्जैक्टली मतलब कहने का ये है कि अगर हर एक कंट्री में हर एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा तो कंट्री ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगी. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. आई थिंक आज के क्लास में सारे टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, सो डोंट बी वरी. हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टॉपिक को और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स को वहां पे कंप्लीट कर लेंगे. पर जितना पढ़ेंगे क्लास में उतना बेस्ट पढ़ेंगे, उतना गुड क्वालिटी वे में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फॉर एग्जांपल दिस इज अ हाउस, यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, देयर आर 4 पीपल. If everyone is earning 50k, someone is earning 50k, someone is earning 70k, someone is earning 60k, someone is earning 10k, but this whole home is earning in lakhs, right? So the standard living of this house, this home will be always high. Are you able to understand this? The simple example is related to country. Country की economic growth depends करती है वहां के लोगों पे. अगर वहां के लोग ग्रो कर रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो रहा है. जॉब्स मिल रही हैं, इनकम्स राइज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहे हैं. सिंपली दैट व्हाट मेक्स अ कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल, इकोनॉमिक ग्रेट, राइट? इंडिविजुअल फ्रीडम, वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म, सबसे बड़ा कि आपके पास फ्रीडम है. You have a full freedom to make any choices, any decisions related to your business. You don't have to seek a permission from anyone. If you want to choosing their jobs role, invest more money, you want to start a new business, you want to acquire a new business, or you want to merge your business. आप किसी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हो, आप किसी और कंपनी को एक्वायर करना चाहते हो, आप उसमें और कैपिटल लगाना चाहते हो, आप उसमें अब जॉब्स बढ़ाना चाहते हो और ज्यादा, या आपके पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हो, आप प्रॉफिट मार्जिन को कम ज्यादा करना चाहते हो, व्हाटएवर डिसीजन, एनी डिसीजन रिलेटेड टू योर बिजनेस आप ले सकते हो. यू हैव ऑल द पावर्स टू टेक दैट डिसीजन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास सारा पावर, यू ऑल आर हैविंग द फ्रीडम टू टेक any decisions, but that all decisions should be legal. That should not be illegal according to your law that is prevailing in your country. ठीक है? कंट्री के लॉ ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, लॉ ऑर्डर को फॉलो करना है एंड जस्ट मेक अ गुड डिसीजन फॉर योर बिजनेस. ऑल द एडवांटेजेस आर क्लियर टू एवरीवन सो दैट वी कैन मूव फर्दर. हम आगे बढ़ सकते हैं. सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके, सिंपल सी बात है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, राइट? हमारे थॉट्स में भी होता है. समटाइम्स वी think positive, sometimes we are negative. The same way capitalism is also having some disadvantages. The first is income inequality. Capitalism can lead to significant income and wealth disparities as those own capital, such as business and property, accumulate more wealth over time, while others, especially workers, may not experience the same economic gains. Simple example लेते हैं. हम किसी भी कंपनी में काम कर, whatever company, whether मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, एक सर्विसेज दे रही हूँ, टीचिंग सर्विसेज, या एक हॉस्पिटल की बात करूं, या मैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं, जो एक ओनर
अर्न करता है, उतना प्रॉफिट, उतना मार्जिन कभी भी एम्प्लॉयज नहीं अर्न करते हैं, राइट? एम्प्लॉयज एक फिक्स सैलरी देते हैं, sometimes they can get incentives or benefits, any bonus, but their salary structure is fixed. All the profits, किसके पास होते हैं? ओनर के पास. So there is always an inequality prevailing in the sector. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो अगर आपको 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ आप 10 लाख आप सैलरी देते हो टू योर एम्प्लॉयज एवरी ईयर, तो आप वही दोगे, प्लस उनको ज्यादा से ज्यादा 11 लाख कर दोगे टू एवरी एम्प्लॉयज. आपके पास तो अभी भी बचा पैसा, बचा 30 प्लस. दिस इज व्हाट इज इनइक्वालिटी इन इनकम. सबको समझ में आ गया? Everyone is clear? Good. Market failure. Markets do not always allocate resources efficiently. For example, public goods such as clean air, unprovided capitalistic system, negative externalities like pollution can harm society without government interventions. For example, आपने कोई production कर रहे हो, air is not good, you have a very bad pollution quality, bad air quality in your city, right? That will always harm your business. Your market will be failed. Some more example like flood, any disaster can happen. This is out of your reach, right? So there are markets whether you are using your resources efficiently, still there are public interventions. Air clean नहीं है, तो सोसाइटी में लोगों की हेल्थ अनहेल्दी है, बिकॉज सोसाइटी इज हार्मिंग. अगर सोसाइटी हार्म होगी बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. एक एग्जांपल और देती हूँ, शायद दिस विल हेल्प यू ऑल. एयर टिकट्स and railway tickets. You can see the difference, right? ठीक है, I know that बहुत सारे other factors भी हैं, but still कि वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, उनको मैनेज, उनके लिए उनको मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, but still you can see the difference. रिसोर्सेस प्रॉपर्ली एलोकेट कर रहे हैं, पर जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है, वहां पे आप अपने हिसाब से कुछ भी रेट रख सकते हो. जो टिकट आज आपको 5,000 की मिल रही है मुंबई की, वो अभी दिवाली आने तक 50,000 की मिलेगी. दिस इज व्हाट प्राइवेटली ओन्ड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट व्हाट मेक्स एक्सप्लॉयटेशंस. ठीक है, मार्केट फेलियर के रीजंस और भी हो सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क. इंटरवेंशन मीन्स, इंटरवेंशन मतलब आप किसी के काम में रंगा लगा रहे हो, जबरदस्ती किसी के काम में आप इन्वॉल्व हो रहे हो विदाउट एनी कंसर्न. रिपीट कर लो, ठीक है. मार्केट फेलियर. मार्केट्स डू नॉट ऑलवेज एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली. हमेशा आप रिसोर्सेस को प्रॉपरली एलोकेट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर हो. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे कि पब्लिक गुड्स सच एज क्लीन एयर. क्लीन एयर ले लो, आप क्लीननेस के ले लो, केयर के अलावा भी बहुत सारे कूड़ा करकट पड़ा रहता है, राइट, उन सबको ले लो. इससे क्या है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में दिस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, पोल्यूशन हार्म हो रहा है, ये सब आपकी सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है. तो रिसोर्सेस को, सोसाइटी को कितना हार्म हो रहा है उस पोल्यूशन से, उस अनक्लीन एयर से, वो जो गंदी हवा है मार्केट में, इन सब से जो लोगों की हेल्थ में अफेक्ट पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है. इससे मार्केट फेलियर है ना, दोबारा कोई जाएगा थोड़ी आपके पास प्रोडक्ट खरीदने. दिस इज व्हाट इज मार्केट फेलियर. अब समझ में आया? इसीलिए कोई भी
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर सेट करते हैं तो वो सिटी के बाहर साइड में सेट होती, सिटी के अंदर नहीं सेट की जाती है, ताकि सोसाइटी में एक रेसिडेंशियल एरिया में किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंच सके। अब क्लियर हुआ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल भी ठीक है, पर ये टॉपिक क्लियर हुआ। और वहीं पे अगर गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा तो थोड़ा सोसाइटी वेलफेयर के बारे में बात होगी, जैसे कि हम जिसे हम सोशलिज्म में पढ़ेंगे, राइट। अभी यहाँ पे हमारा कंसर्न सिर्फ कैपिटलिज्म को लेकर होना चाहिए। चलो फटाफट करते हैं आगे, टाइम हो रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर करने। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, बिजनेस एक्सप्लॉइट वर्कर्स बाय पेइंग देम लो वेजेस। आप खुद तो 100% प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, पर आपने वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज की नहीं अच्छी है, ठीक है, उनको बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो, उनकी वेजेस बहुत लो है, तो दिस ऑल मेक्स द वेरी बैड इम्पैक्ट अपॉन योर बिजनेस, राइट। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए वर्कर्स का, इसके लिए लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट, इंडस्ट्रियल एक्ट से जो रन कर रही है, दैट्स व्हाई दिस लॉ हैव टू, every individual, every business owner has to follow, whether you are owning privately or not, you have to follow these laws, just कि कोई exploitation workers का ना हो, उनको proper conditioning मिले, उनको working environment अच्छा हो, so that they can give you more productivity। but वो सब चीजों के लिए क्या बनाया गया, लॉ। तो लिमिटेड बार्गेनिंग हुए कि कम से कम सैलरी में लोग आके काम करेंगे, सब चीजें डिसएडवांटेजेस हैं कैपिटलिज्म के। बूम एंड बस्ट, देखो हर एक बिजनेस का टाइम आता है जब वो एक्सपैंड करता है, एक टाइम आता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये जो सिचुएशंस है, और इसको इस तरीके से प्रिवेल करनी है कि वो ज्यादा लॉस ना दे। कई बार क्या होता है कि बिजनेस इतना ज्यादा बस्ट में यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशंस, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशंस भी अराइज कर देता है इकोनॉमी, राइट। Is it clear to everyone? Monopoly power. Over time, some business may become so dominant that they stifle competition, leading to monopolies or oligopolies. This can result higher prices, reduced innovations, and a concentration of economic power. देखो, sometimes क्या होता है कि आपके पास ना मोनोपोली पावर आ जाती है। What do you mean by monopoly power? A single seller and many buyers. मतलब उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप यहीं से लोगे। इफ यू वांट टू ट्रेवल बाय रेलवे, इफ यू वांट टू ट्रेवल बाय रेल, दैट यू हैव टू ट्रेन से जा, इफ यू वांट टू गो बाय ट्रेन, राइट, रेलवे, तो यू हैव टू परचेज अ टिकट फ्रॉम IRCTC, है ना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू take the you will go by train, right? So you have to know that there is a monopoly। अब गवर्नमेंट प्राइस हाई कर दे, रेलवे प्राइस लो कर दे, इट्स अ मोनोपोली। तो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। अगर किसी की मोनोपोली हो जाए तो दे कैन यूज इन द वे दे वांट। सो इट इज ऑलवेज कि देयर शुड बी अ monopolies and oligopolies should be maintained, right? Is it clear to everyone? Examples of capitalistic economy, सबसे पहले देखो यूनाइटेड स्टेट्स, यस, यूएसए इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक जहां पे फोकस ऑन फ्री मार्केट, प्राइवेट ओनरशिप्स एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी मिनिमम, राइट। UK is also a capitalist economy and Japan is also a very a capitalist economy. So examples are important. They can even ask you in the exam, give some examples of capitalistic countries. So USA, UK and Japan, right? Is it clear to everyone? Capitalistic is clear to everyone? मोनोपोली वाला एक बार दोबारा। मोनोपोली का मतलब होता है ऐसी मार्केट जहां पे सिंगल सेलर है एंड मेनी बायर्स।
इट मीन्स कि नो सब्सटीट्यूट। अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको आईआरसीटीसी के अंदर ही टिकट बुक करनी है ना। ऐसा तो नहीं है कोई और भी है जो आपको रेल टिकट्स प्रोवाइड कर सकता है। नो, you go by, if you want to go by train, you have to buy a ticket from this side only, otherwise you will not be able to go by train, right? Is it clear to everyone? अब समझ में आ गया? ओलिगोपोली इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। इसका एग्जांपल सिंपल सा ये है जो आपकी कंट्री में हो गया एयरलाइंस, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, बहुत कम फ्यू सेलर्स होते हैं, मैनी बायर्स। सिंपल मैं यही बोलूंगी, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगी, सॉरी फॉर दैट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लास है, जस्ट स्टिक विद दिस टॉपिक ऑन, राइट? आपसे कोई एग्जाम में बिजनेस एनवायरनमेंट की ओलिगोपोली नहीं पूछेगा। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू ओलिगोपोली। बस्ट, बूम एंड बस्ट का मतलब है, बूम मीन्स व्हेन योर बिजनेस इज राइजिंग, बस्ट मीन्स जब आपका बिजनेस स्लो हो रहा है, जब आपका डाउनफॉल आ रहा है, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Next is socialism. Socialism means when the whole economy is run by the government. Is it clear? When it is run by the government for social welfare rather than individual profits. आप अपनी इकोनॉमी, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को रन करते हो सोसाइटी वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, ना कि प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। तो ऑल कंट्रोल इज ऑफ गवर्नमेंट, टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। I'll give me an example. India is socialism, socialistic economy or not? इंडिया सोशलिज्म को फॉलो करता है कि नहीं करता है? यस और नो में आंसर दो। इंडिया इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी और नॉट? जो स्टूडेंट्स यस बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एमबीए कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री, शेम ऑन यू। आपकी कंट्री में क्या सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है? प्राइवेट कंपनीज नहीं है, जियो प्राइवेट कंपनी नहीं है, टाटा प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड सो ऑन, lots of private companies are prevailing in the market. थोड़ा सोच समझ के बच्चों आंसर करो। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर लोन भी है, जैसे कि रेलवेज। आप समझ में आया? कभी दोबारा भूलना मत, ये सब टॉपिक्स ना एग्जाम में पूछे, ये इंटरव्यूज में स्पेशली पूछे जाते हैं। इतना बड़ा ब्लंट मत करके आ जाना। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री, नॉट अ सोशलिज्म कंट्री। कौन कौन सी कंट्री सोशलिस्टिक है अभी पढ़ेंगे इस क्लास में। अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा टॉपिक, डोंट वरी, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? तो सोशलिज्म क्या मतलब है? इट इज totally owned and controlled by government, right? It is for promoting the social welfare in the country, prevailing social welfare, not profit. Public or collective ownership. One of the defining feature of socialism is that means of production, factories, resources, services are owned by the state government or cooperatives or central government is a part of socialism, right? Second, economic planning.
गवर्नमेंट प्लान 5 ईयर प्लान बनाता था पहले, अब 5 ईयर प्लान नहीं बनता, इसकी जगह अब कौन सा प्लान बनता है, कौन बताएगा? What is 1 year? No, nothing is like 1 year. नीति आयोग, एग्जैक्टली। इकोनॉमिक प्लानिंग पहले प्रोवेल होता था हमारी कंट्री में बिफोर मोदी गवर्नमेंट, आई कैन से। आफ्टर as soon as PM Modi became a government of Prime Minister of India, so he abolished the economic planning and in place of that abolished this and come Niti Aayog, right? तो what you simply meaning क्या इकोनॉमिक प्लानिंग का, कि जो मार्केट में जो भी सप्लाई और डिमांड से गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका प्रॉपर कंट्रोल करता है सेंट्रलाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट। each and everything are controlled owned by government only. So economic planning, कौन कौन से resources यूज होंगे, प्रोडक्शन कितना होगा, सेल कितनी होगी, डिमांड कैसे जनरेट करेंगे, कैपिटल कितनी लगानी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितना सोसाइटी वेलफेयर में जाएगा, ईच एंड एवरी डिसीजन में इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं वो सब गवर्नमेंट करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स जैसे कि कैपिटलिज्म में मार्केट और सब मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप प्राइस सेट करते थे, ठीक है, कैपिटलिज्म में भी करते थे ना। बट जब हम बात सोशलिज्म की करते हैं तो जो भी रिसोर्सेज यूज होंगे, जो भी चीजें होंगी वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे, कितना सोसाइटी वेलफेयर के लिए जाएगा, कितना सोसाइटी के रिसोर्सेज के लिए करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करती है, इस तरीके से उन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बनाती है, सर्विसेज देती है कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी वेलफेयर के लिए जाए, सोशल नीड्स फुलफिल हो, ठीक है। जैसे कि आयुष्मान करके एक स्कीम चलती है, एक कंसेप्ट आया, राइट, फॉर मेडिकल बेनिफिट्स। तो दिस इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशलिज्म, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसमें पूरा। अब क्लियर हो गया? आयुष्मान भारत, राइट, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे कि व्हेन government is intervening, when it is owned by government, it will always maintain an equality and social welfare in the economy, right? They will eliminate the income inequality, they will ensure that everyone gets an equal opportunity, equal services, healthcare, education, housing and food, right? So progressive taxation is prevailing, social welfare के लिए government services, तभी तो लोग गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब पे नहीं जाना प्रेफर करते हैं, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये टॉपिक तो इजी है, पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा सबको। देखो, कोई भी टॉपिक को समझने का सोल पर्पस उसके इंट्रोडक्शन में होता है मैक्सिमम टाइम्स, अगर आप ध्यान से पढ़ो। अब आपको पता चल गया कि सोशलिज्म का मतलब है कि सोसाइटी का वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए सोशलिज्म इकोनॉमी रन होती है जो कि गवर्नमेंट करती है, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये तो सबको समझ में आ गया। अब इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? काम कोई भी करे, गवर्नमेंट कुछ भी करे, सोशलिज्म में कुछ भी हो, उसका मेन सोल पर्पस है सोशल वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी को बेनिफिट देना और इक्वालिटी को जनरेट करना। चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात करें, चाहे वो कोई सर्विस देने की बात करें, एनीथिंग दे आर डूइंग, उनका सोल और अल्टीमेट पर्पस है सोसाइटी की वेलफेयर, कंट्री की वेलफेयर, ठीक है। अब उसके कंटेक्स्ट में खुद माइंड बनाओ, खुद सोचने की कोशिश करो, खुद थिंकिंग एबिलिटी जनरेट करो कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और उसके हिसाब से आंसर कर दोगे। डिफिकल्ट नहीं है पढ़ना, बस चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। देखो, हर जगह बात घूम घूम के वही कहती है, बट दे आर गिविंग देम दैट point in every other context. Last is
Limited private property. In socialism, private property is often limited to personal possessions such as homes, cars, or clothing, while key industries, resources, or large-scale enterprises are public. देखो, अगर आप कंट्री आपकी सोशलिस्टिक कंट्री है, ठीक है, अगर आप एक कंट्री में सोशलिज्म को फॉलो करते हो, वहां पे कुछ चीजें प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, जैसे कि आपका घर, आपकी कार, आपका कपड़े, आपका मकान, आपका फोन, ये सब आपका प्राइवेटली ओन होगा। उसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री रन कर रहे हो, कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई इंटरप्राइज रन कर रहे हो, वो सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर आएगा। गवर्नमेंट कब चाहे कोई भी चेंजेस ला सकती है, कोई फ्रीडम नहीं है आपको कोई भी चेंजेस लाने का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सोशलिज्म का मतलब समझ में आ गया? क्लास प्लीज रिप्लाई। इक्वालिटी इंडिया में कब से हाई है? गरीबों को कितना बेनिफिट मिल रहा है स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम से, जरा बताना। ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, इसको हम नहीं करते हैं, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी आप लोगों को, काफी इंटरेक्टिव क्लास है, मुझे तो बड़ा मजा आया आज की क्लास में, ठीक है। और इसके पहले की क्लासेस में आपको बहुत सारे इश्यूज आए थे, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं क्लियर होंगे, डोंट वरी, मैं किसी भी तरीके से मैनेज करके उन टॉपिक्स की को मैं बहुत ही ब्रीफ वे में आप लोग को एक किसी दिन समझा दूंगी, ताकि एग्जाम से पहले आपको सब टॉपिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, सिलेबस कंप्लीट जल्दी करने की कोशिश करेंगे सो दैट हम उस टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लें। Everyone is okay with today's class or not? फाइन, ओके। तो आज टाइम ओवर हो चुका है ऑलरेडी। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं सोशलिज्म से हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सोशलिज्म से ओनली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप यू लाइक दिस क्लास, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड वीक। थैंक यू सो मच क्लास।